ओके ओके। अपनी परंपरा के हिसाब से हम लोग अपने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से आग्रह करूंगा कि हमारे एसोसिएशन के विषय में कुछ बताएं और आज के टॉपिक के विषय में उनकी क्या विचार हैं, या उनका क्या व्यू है, उससे भी हमें रूबरू कराएं। मिस्टर बजरंग अग्रवाल जी, प्लीज। Yes, thank you, Prakash. Good evening to all. I welcome to our speaker, Mr. Aditya Chokhani ji, for delivering for today's topics, PF, ESI, and other level laws. Though today is the first day of the weekdays, but the attendance is very good. 31 participants I see, and as well as on Facebook, there are so many participants. It shows that the topic of the today is very relevant topic for the chartered accountant. Chartered accountants are expert on the direct tax and indirect tax, and this topic, PF, ESI, and other level laws, they think that this is the minor topic, but I think that in current scenario, the topic is very relevant. So in this topic, the knowledge must be to all the chartered accountant, my fellow chartered accountant. Sir, our association is the more than 800 chartered accountant in our association. This is very young, vibrant, and prestigious association of the Eastern Indian zone. Our association premises in Bangur. So, without wastage of the time, I request Mr. Aditya Chokhani, please deliver his speech. And sorry, I welcome. I request CA Prakash Patwari to welcome and introduce Aditya Chokhani ji. Yes, thank you, Bajrang ji. Thank you. Just some brief introduction for the Aditya Chokhani ji, because today he is our speaker and he has a vast knowledge in this field. Mr. Aditya Chokhani is a director of leading consultancy firm, Virus Advisory Services Private Limited, for compliances management services. Mr. Aditya has a vast experience of labor laws. He is in the field from the past 12 years. He is working with many big corporates and the SME. He handles all type of legal compliances of labor laws like hearing, notice, and all. So he will share all the experience and practical aspect and will give us insight of the labor laws, PF, ESI, and others. He will also light us on the recent changes on the notification which was announced by our Honorable Finance Minister. So requested to Mr. Aditya to start your deliberation and enhance our knowledge through your practical approach. Aditya ji, please. Thank you, Prakash ji. Thank you, Bajrang ji. Apart from the introduction, let me tell you that I am handling around 150 odd clients and a portfolio of over 6,000 employees, and I'm managing their compliances. And in today's topic, basically, I will try to cover what is most relevant to the CAs and some of the very basic points, and I will be using Hindi, English दोनों, ताकि समझने में आसानी हो. That is the most important agenda for us, कि बातें समझ आएं. Secondly, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो बहुत ही बेसिक हैं, आपको लगेगा कि ये क्या बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है, बट यहीं पे ज्यादा गलतियां होती हैं. आज जो क्लाइंट्स हमारे हैं, दे सफर बिकॉज ऑफ मे बी रॉन्ग सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस के लिए. सो आई विल बी कवरिंग दोज फर्स्ट. आई विल ब्रश थ्रू विथ द टॉपिक्स ऑफ PF, ESI, applicability of that, and in the concluding part I will be speaking a little bit about the scheme that we have, Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, ABRY, and then we will open the floor for any kind of questions. Please put your questions to the chat box. Mr. Prakash will aggregate it, and accordingly one by one we can take it up. So with this, I think I should start my slides.
And before I start my slides, good evening to all and Happy New Year. Hope 2021 is much better than 2020. Yeah. So, as I introduce myself, then the topics that we'll be covering today is basically introduction to labor compliances, salary components and structures, ESI, PF, P-tax, minimum wages, gratuity, child labor, payment of wages act, that is minimum wages, bonus act. So starting with labor compliances, the most common mistake that people do in our files is when we say labor, a lot of बहुत सारे कंपनीज हैं जो बोलते हैं कि जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो लेबर हैं, बट जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो तो लेबर नहीं है, स्टाफ है. बट इन लेबर लॉ बेसिकली लेबर इज इक्वल टू ऑल एम्प्लॉइज. यहाँ पे जो हमारे कल्चरल सेंस में हम लोग जिनको लेबर बोलते हैं वो नहीं है. टेक्निकली एनीवन पुटिंग इन एनी एफर्ट फॉर अ कॉम्पनसेशन इज लेबर. सो when we are calculating employees or labor compliances, it applies to all, including directors of a private limited or limited company. Then principal employer and contractual employer. अब बहुत जगह ये आता है कि मान लीजिए 20 employees पे PF applicable हो रहा है, बट मेरे यहाँ 10 लोग हैं, बाकी तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं and all that. So direct, indirect, all employees, you are the principal employer और वो आपके head count में आता है. And if you are the principal employer, statutory liabilities do transfer to the principal employer. So आप जब ऑडिट करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स का हेड है या लेबर चार्जेस हैं जो किसी और को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में है, they are also to be considered in labor compliance. So it is in spirit employer is the custodian and labor compliances is not a tax. Now, salary structure is something very important, जहाँ 90% लोगों का गलती होता है कि salary breakup में what do we define? Gross salary हुआ, मान लीजिए what I have decided, if I hire someone at a salary of 10,000, तो वो उसका gross salary हुआ, उसमें सिर्फ उसका पोर्शन कटेगा, अपना पोर्शन ऐड होगा. So gross salary वो हो गया जो salary हम तय करते हैं, and इसमें भी rate of wages and earned gross, इन दोनों में फर्क है. रेट ऑफ वेजेस हुआ कि आप हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो एक रेट फिक्स हुआ कि आपको महीने का इतना रुपया देंगे. अब मान लीजिए किसी को पार्ट टाइम अपॉइंट किए, 15 दिन वो आएगा, उसकी सैलरी अगर 10,000 हो गई तो रेट ऑफ वेजेस उसका मंथली हो गया 20,000. अब पीएफ में आएगा कि नहीं, ईएसआई में आएगा कि नहीं, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन रेट ऑफ वेजेस एंड कंप्लायंस इज डन एंड कंट्रीब्यूशन इज पेड ऑन अर्नड वेजेस. अब मान लो कोई 20,000 का एम्प्लॉय है, वो 10 दिन एब्सेंट है, सो कंप्लायंस अर्नड सैलरी पे होगा. बट अब मान लो कोई 25,000 का एम्प्लॉय है तो वो ईएसआई से बाहर रहेगा, बट वो 15 दिन काम किया, 12,500 कमाया, तो ये नहीं कि उस महीने उसको पेमेंट करना, अगले महीने नहीं करना. सो रेट ऑफ ग्रॉस डिसाइड्स इफ एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड फॉर पीएफ और नॉट, ईएसआई और नॉट. अर्नड वेजेस इज जिस अमाउंट के ऊपर आप पेमेंट करते हैं. सीटीसी टोटल हो गया आपका एम्प्लॉयर का पोर्शन ऐड करने के बाद ऑन द ग्रॉस. सो ये कंपोनेंट अपने को समझने बहुत जरूरी है. व्हेन वी आर बुकिंग इट इनटू द बुक्स ऑफ आवर क्लाइंट्स, आप सैलरी हेड में उनका ग्रॉस सैलरी बुक करेंगे, सीटीसी नहीं. दैट इज एम्प्लॉयर के पोर्शन ऑफ पीएफ एंड ईएसआई को छोड़कर आप सैलरी हेड में बुक करेंगे, और एम्प्लॉयर का जो सैलरी पीएफ एंड ईएसआई है दैट विल बी बुक्ड इन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, नॉट एज सैलरी. नाउ ये एक पीछे लास्ट ईयर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि पीएफ में सारा कुछ बेसिक है एंड ऑल. सो अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट, एक्सेप्ट फॉर एचआरए, एवरी अदर अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक, और एक बेसिक के ऊपर आपको पीएफ देना है. और अलाउंसेस में इंसेंटिव्स आर नॉट अलाउंसेस, कमीशन, दीज आर नॉट अलाउंसेस. अलाउंसेस वही है जो आप फिक्स किए हैं कि हर महीने इतना रुपया उसको मिलेगा. वेरिएबल पार्ट इज नॉट allowances. And on the variable pay, अगर वो 60 डेज के ऊपर है तो उस पर ईएसआई भी नहीं लगता है. सो देयर आर अदर डायमेंशंस टू इट, बट पहले अपने को ये कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है. जब आप फाइल्स देखते हैं
कि उसमें लगा है कि नहीं लगा है, तो हो सकता है 10 लोग हैं, 10 में से 2 का लगना ही नहीं है, 8 के लगने हैं. So this is salary structure पे, rate of wages पे, that is where it is applied or not applied. Now again, incentive should always be variable. बहुत लोग हैं जो हर महीने fixed incentive दे देते हैं, so it will not be considered as incentives, it will be considered as an allowance. और उसमें PF ESI दोनों attract होंगे. Frequency of payment of any incentive has to be more than 60 days, नहीं तो ESI applicable होगा. But any incentive, any bonus, any variable pay or reward pay is a part of annual earning of an employee. तो एम्प्लॉय के टीडीएस को जब आप प्रोसेस करते हैं तो ऑल इनकम इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, इंक्लूडिंग बोनस, इंक्लूडिंग लीव एनकैशमेंट, एवरीथिंग. नाउ बोनस पर से इज गवर्न्ड बाय पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. अब वो आपका एम्प्लॉय कोड्स में आ जाएंगे. दिस इज मैंडेटरीली एनुअल इन नेचर, बट अ लॉट ऑफ पीपल पे इट मंथली. इफ इट इज पेड मंथली, उस पर ईएसआई लगेगा आपका. प्लस बोनस एक्ट के हिसाब से एक सीलिंग है, दैट इज 7,000 रुपीज एज बोनस वेजेस. सो जो भी परसेंटेज आपका डिसाइड हुआ है, सो 7,000 इंटू 12 एंड दैट परसेंटेज ऑन दैट. सो मैक्सिमम 20% आप बोनस दे सकते हैं. एंड इफ इट इज 8.33, और मान लीजिए आप किसी को एक महीना का जो मार्केट में ट्रेडिशन या कल्चरली जो चलता है, सो इट इज आपने, इफ यू आर पेइंग समवन 10,000, सो इट इज ऑलवेज वाइज टू बुक 7,000 as bonus and 3,000 or the amount above 7,000 as ex gratia. And it is always again part of annual earning. Leave encashment, if we are paying to anyone, it does not attract any kind of PF or ESI, but it will go into the TDS calculation. Now, एक और चीज जो हम आगे पहले डिस्कस कर रहे थे CTC and gross में, contribution and deduction, these are two different things. डिडक्शन वो है जो हम ग्रॉस सैलरी से काटते हैं एम्प्लॉय का पार्ट, सो दैट इज डिडक्शन. बट वी कंट्रीब्यूट एज अ कंपनी, वी कंट्रीब्यूट टू द सेम फंड, सो द एम्प्लॉयर शेयर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज कंट्रीब्यूशन, एंड दैट इज व्हाई ओनली द कंट्रीब्यूशन इज टू बी बुक्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट्स. डिडक्शन इज नॉट टू बी बुक्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट्स. वो आपको ग्रॉस सैलरी या सैलरी बुक करना है. Then audit points में, as I was saying, there are a lot of mistakes that we do in 3CD also. Income tax disallow only the deduction in case of delayed payments. Interest and damages is applied on the deduction and contribution both. So disallow अपने सिर्फ deduction का करना है, तो वो interest वाले calculation में you have to see कि आपको क्या treatment देना है. एंड क्वालिफाइड डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन को आपको डिस्टिंक्टली आप इसमें क्वालिफाई कीजिए. अगर किसी का अनपेड है, मान लीजिए ओवर ड्यू है, अनपेड है, एंड इफ यू आर क्वालिफाइंग इन योर ऑडिट नोट्स, उसको डिस्टिंक्टली कीजिए. बिकॉज अगर वो डिडक्शन नहीं पेमेंट करते हैं, सो दे कैन, वारंट कैन बी ब्रॉट आउट अगेंस्ट द पार्टी, बट कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में वारंट नहीं आ सकता. सो इफ योर क्लाइंट गेट्स इनटू ट्रबल फॉर एनी रीजन, audit notes will help you in resolving it at a smaller amount. Now coming to the laws, ESIC, it is applicable on any organization at any point of time if it is having 10th employee. Now 10th employee in head count. कोई जरूरी नहीं है कि आपके ESI के अंदर कवरेज के अंदर 10 लोग हों. मान लीजिए 10 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 4 लोग ही ESI में क्वालिफाई कर रहे हैं, 21 के नीचे हैं, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट बिकम्स मैंडेटरी. ऐसा भी केसेस मैंने देखा है कि सारे ही एम्प्लॉइज, IT वगैरह में होता है कि सारे ही एम्प्लॉइज 21,000 के ऊपर हैं, स्टिल रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज मैंडेटरी. एंड करेंटली तो अभी MCA से जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है. But it is applicable only once you cross the 10th employee, and the 10th employee includes any paid directors in a private limited or a limited company, and in partnership and LLP, if the partners are taking salary, जो आप खर्चे का PL में बुक करते हैं, not withdrawals. Now ESI के बाहर कौन लोग रहेंगे?
पहले हमने कवर किया कि एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर हो गया। अब एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर होने के बाद इसके अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, मान लीजिए कोई माइनिंग कंपनी है जिसके कुछ एम्प्लॉइज कलकत्ता में है, कुछ एम्प्लॉइज माइनिंग एरियाज में है। अगर वो माइनिंग एरिया बहुत रूरल है और वो नॉन नोटिफाइड एरिया है, तो उन एम्प्लॉइज को जो वहां डिप्लॉयड है उनको ईएसआई में रजिस्टर नहीं करना है। या फिर जो एम्प्लॉइज 21,000 ग्रॉस सैलरी के नीचे है उनको करना है, 21 के ऊपर वालों को नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज है, 21,000 वाले को भी करना है, 21,001 रुपए वाले को नहीं करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट टाइम्स लोग 21,000 आ गए तो बंद कर देते हैं, 21,001 पे बंद होगा, 21,000 पे नहीं होगा। सेकेंडली, एक चीज है कंट्रीब्यूशन पीरियड। इन ईएसआईसी देयर इज समथिंग कॉल्ड कंट्रीब्यूशन पीरियड। 6 महीने का पीरियड होता है, अप्रैल टू सितंबर एंड अक्टूबर टू मार्च। तो उसमें मान लीजिए किसी को अगर हमने दिया है, फिर वो बिटवीन दी कंट्रीब्यूशन पीरियड 21 के ऊपर चला गया। से फॉर एग्जांपल अप्रैल और मई में मेरी सैलरी थी 20,000, जून में आई गॉट एन इंक्रीमेंट और 22,000 हो गया। सो माय कंट्रीब्यूशन विल कंटिन्यू टिल 30th of September। वो जून में बंद नहीं होगा। मिड ऑफ द कंट्रीब्यूशन पीरियड कंट्रीब्यूशन बंद नहीं होता है। और 22,000 हो गई है तो मुझे पूरे 22,000 पे कंट्रीब्यूशन देना है टिल सितंबर। 1 अक्टूबर से बंद हो सकता है। सो दिस कंट्रीब्यूशन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ऑडिटिंग द बुक्स एंड द करंट रेट इज 0.75 फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड 3.25% फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। आप लोग काइंडली क्वेश्चंस नोट करते रहिएगा, because I'm brushing through with the presentation so that we get maximum time on our question and answers. Due date for ESIC is 15th of every subsequent month. 16 तारीख को होने से आपका CCD में डिस्क्वालीफाई होता है, only the 0.75% वाला पार्ट। इंटरेस्ट एंड damages are per day के स्लैब के हिसाब से है। It goes up to 12% interest and 25% damages. It is always paid on the gross salary। और कोई भी वेरिएबल है आपका, इंसेंटिव हो चाहे एनीथिंग एल्स, इफ इट इज पेड इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 60 डेज, जैसे अगर मंथली पेमेंट किया तो उस पर ईएसआईसी लगेगा। मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 है, वो 5,000 इंसेंटिव हर महीना कमा रहा है या कुछ भी इंसेंटिव कमा रहा है और हर महीने उसको पेमेंट हो रहा है, तो 20 + 5 25,000 पे उसके ईएसआईसी लगेगा। एंड ईएसआईसी इज नॉट पेड इफ इट इज मोर देन 60 डेज का फ्रीक्वेंसी है आपका तो। And but over time पे ESIC will be paid and ESIC is not applicable on annual bonus। अगर आप मंथली दे रहे हैं तो ESIC लगेगा, बट अगर एनुअल बोनस है तो उस पर ना PF लगना है ना ESIC लगना है। Now the main KYCs that ESIC में लगता है, that is अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए उनका बैंक अकाउंट एंड OTP के लिए फोन नंबर इज बिकमिंग मैंडेटरी। एक बार आप एम्प्लॉय को रजिस्टर कर लेते हैं तो उनका ई पहचान कार्ड जनरेट करके उनको दे दीजिए, क्योंकि फिलहाल वो जो परमानेंट कार्ड बनते थे या आधार से लिंकेज होता था, फिलहाल वो बंद है। सो ये जो ई पहचान कार्ड आपको मिल रहा है उसी पे साइन करके आप देते हैं, तो दैट इज हिज आइडेंटिटी कार्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द बेनिफिट्स। यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहा हूँ, एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग के विदिन 10 डेज एम्प्लॉय को ईएसआईसी पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ता है, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है। फिर अदरवाइज थिंग्स बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो एक शो कॉज एंड ऑल हैपेंस। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ ईएसआईसी इज एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, एम्प्लॉय खुद कवर्ड है। डिपेंडेंट्स, ऑल डिपेंडेंट्स बिलो द एज ऑफ 18 एंड सीनियर सिटीजन, मदर फादर कोई है विद अ सर्टेन इनकम ब्रैकेट, दे आर ऑल कवर्ड। एंड ऑल्सो कवर्स लॉस ऑफ पे। अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन है किसी का तो अप टू 104 वीक्स तक लॉस ऑफ पे का भी रिएम्बर्समेंट मिलता है फ्रॉम ईएसआईसी। एनी डिसेबलमेंट पेंशन भी चालू हो जाता है इफ इट इज देयर। यहाँ तक कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी एंट्री बैरियर, कुछ नहीं है। आज अपने प्राइवेट इंश्योरेंस करवाते हैं मेडिक्लेम वगैरह, तो इफ यू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो बहुत जगह अपने को उसमें दिक्कत आती है कि योर इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट इशूड। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं चाहिए टू ज्वाइन। इवन विथ एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज द एम्प्लॉई एंड द डिपेंडेंट्स आर कवर्ड एंड देयर इज ऑल्सो नो एज लिमिट टू एंटर।
इवन आज डिपेंडेंट्स अगर 90 साल के भी हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलता है. So there is no age limit for that. Now, some audit points. प्रॉपर कैलकुलेशन आपको होना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया दी पॉइंट्स व्हाट वी हैव शेयर्ड कि ग्रॉस सैलरी पे होना चाहिए, अगर वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी क्या है वो चेक करना है. सो कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए कि अपने ईएसआई का कैलकुलेशन क्या हुआ है. अ लॉट ऑफ केसेस जहां पे जो मैंने आपको कंट्रीब्यूशन पीरियड का गलती बताया, दैट इज व्हाट हैपेंस एवरी सिंगल टाइम. वी सी कि 22,000 हो गया, बंद कर दिए, कंट्रीब्यूशन पीरियड के बीच में बंद कर दिए. सो as auditors we have to check this. डिपॉजिटिंग ऑन टाइम है कि नहीं ये अपने को चेक करना है. हर 15 तारीख के अंदर हुआ है. अगर लेट हुआ है तो देर इज एन एक्सटेंशन. इफ देर इज एन एक्सटेंशन, आप 3CDA में ड्यू डेट एक्सटेंडेड डेट को दिखाएंगे. एनी काइंड ऑफ डिले विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एंड डैमेजेस. वो बुक हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना है. अगर आप अक्रूव बेसिस पे लेते हैं तो दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू बुक इट, क्योंकि वो जनरली डिमांड आता है तब बुक होते हैं. बट इफ देयर इज एनी डिले यू कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड बुक ऑन योर बुक्स एज लायबिलिटीज. अरियर पेमेंट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ मान लीजिए किसी की सैलरी इंक्रीमेंट हुई इन अगस्त बट विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल, तो ऑब्वियस है कि वो अगस्त में ही उसका ईएसआई डिफरेंस अमाउंट का ईएसआई जमा करेगा इन अगस्त. इन दैट पर्टिकुलर केस वो ओवरड्यू नहीं माना जाएगा फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बिकॉज अरियर वाज नॉट नोन. इट वाज डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो जिस मंथ में अरियर पेमेंट हुआ उसी मंथ में कंप्लायंस हुआ है. सो अरियर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा इन योर 3CD. बट मान लीजिए 10 एम्प्लॉय थे, उसमें से एक का हमने पेमेंट नहीं किया, दैट इज सप्लीमेंट्री. वो हम 4 महीने बाद डॉक्यूमेंट आता है उसका तब जमा करते हैं, तो सप्लीमेंट्री वाले का डिसअलाउ होगा, अरियर वाले का नहीं होगा. सो दिस डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट between supplementary and arrears. And disallow only the employee share if delay. पूरा अमाउंट डिसअलाउ नहीं होगा. और ये आपको चेक करना है तो कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री एंड चालान आप अपने क्लाइंट से मांग सकते हैं. वहां वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, किसका किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कितने दिन का डिले है. दैट इज ऑल देयर इन द चालान एंड कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री. नाउ कमिंग टू PF. Registration again in this case for establishment becomes mandatory at 20th employee. Now 20th employee मतलब आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्टर्स सारे इंक्लूडेड हैं. कहीं पे आपके 17 एम्प्लॉइज हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं तो 19 हो गए, लेकिन 3 लोगों को सिक्योरिटी गार्ड कंपनी से ले रखे हैं तो वो हेड काउंट माना जाएगा 22. एंड PF registration becomes mandatory. Directors, as I told you, in a private limited company or a limited company is counted because they are not owners, they are office bearers. Even excluded employees are counted for registration. जो PF से applicable नहीं है, जो बहुत senior executives हैं, मान लीजिए कहीं executive director है, president है, vice president है, 2 लाख 4 लाख का सैलरी उठा रहे हैं महीने का, even they are counted in the head count. भले उनका PF जमा ना करें. is also included. Voluntary registration is possible. अब बहुत सारे clients हैं जिनका टेंडरिंग का काम है, 20 एम्प्लॉय नहीं है, 5-7 एम्प्लॉय हैं, but even they can take a PF registration if they want. उसको voluntary registration बोला जाता है. एक और चीज है, मान लीजिए हम PF, बहुत जगह आप सुनते होंगे कि मेरा तो कंपनी चल नहीं रहा है, कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, पुराना PF लिया हुआ था उसको सरेंडर कर दीजिए. Once registered, always registered. एक इसमें PF का एक सिंपल फंडा है, once a member, always a member. PF एंड ESI का रजिस्ट्रेशन जब तक आपका कंपनी लिक्विडेट या वाइंड अप नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल नहीं होगा. ओनली HRA इज नॉट कैलकुलेटेड इन कंट्रीब्यूशन. अभी कुछ और चेंजेस आ रहे हैं, बाय मार्च और अप्रैल वो नोटिफाई हो जाएंगे. देन अगेन द स्ट्रक्चर्स विल चेंज. These changes will be in favor of the industry. Then the wage ceiling currently is 15,000. कि 15,000 तक ही पेंशन फंड में जाएगा. एंड आप चाहें तो रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं. किसी की सैलरी 20,000 भी है बेसिक तो आप 15,000 तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं.
सो वेज सीलिंग जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है एंड वेज सीलिंग अपने टाइम टू टाइम चेंज होता है. सो वेज सीलिंग तक हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन. नाउ बेसिक रूल्स इसमें जो है, अगेन इसमें भी 15 तारीख है. यहाँ एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ईएसआई का तो 21 तारीख था. किसी का ये आ रहा है, काइंडली म्यूट कर दीजिए. हाँ, सो बेसिकली द ड्यू डेट फॉर पीएफ इज आल्सो 15. कुछ समय पहले तक ईएसआई का 21 तारीख था, बट अभी दोनों का 15 तारीख ही है. सो ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को है कि वो 21 तारीख है, बट करेंटली इट इज बोथ पीएफ एंड ईएसआई बोथ आर 15. अगेन इंटरेस्ट एंड डैमेजेस इज पर डे का स्लैब के हिसाब से है कि इफ इट इज older than 6 months it goes higher. Basic PF not calculated on entire salary. ये एक चीज है. अपने जैसे ESI में बात किए थे that ESI is calculated on gross, that is the entire salary, but PF is not calculated on the entire salary. कुछ allowances हैं, कुछ चीजें हैं जिस पे PF नहीं लगती हैं. Again allowances such as HRA, as of now HRA पे PF नहीं लग रहा है. आने वाले समय पे there are other allowances that will be allowed to be excluded, but PF has to be paid at least on 50% of gross salary. Over time, even if it is paid on a monthly basis, इस पे PF नहीं लगता है. Specifically, PF Act says that overtime will not be calculated for the purpose of calculation. Incentive if variable. यहाँ पे भी again it should not be fixed, but if it is variable, PF is not applicable. And bonus is also not applicable on the PF. PF is not applicable on bonus also. KYC बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर अपने पास KYC में आधार कार्ड नहीं है तो PF नंबर ही जनरेट नहीं होगा. सो अपडेटेड आधार कार्ड, एंड इन व्हेन आई से अपडेटेड आधार कार्ड, अगेन अ फाइन पॉइंट देयर इज, पुराने आधार कार्ड में अपने देखे होंगे ईयर ऑफ बर्थ है. वी नीड टू अपडेट इट फॉर डेट ऑफ बर्थ. That is date, month, year, तीनों होने चाहिए, तभी वो आधार कार्ड PF एक्सेप्ट करती है, otherwise they don't. PAN card is also essential. At a lower level, a lot of people don't prefer PAN card कि हमारे तो टैक्स लगता नहीं है. But for your employees benefit, PAN card is always very important कि आज किसी का PF अगर किसी को withdraw करना है, without PAN card उसमें एक अच्छा खासा TDS कट जाता है. And as CAs you can understand कि अगर मेरा TDS कटा है और मेरा पैन कार्ड नहीं है, सो आई हैव नो मीन्स ऑफ रिक्लेमिंग इट ऑल्सो. सो एक गरीब आदमी जो अपना जिंदगी भर का पूंजी जमा किया है, उसका 25-30% अगर TDS कट जाए, so that's a huge amount. So encourage your clients to encourage their employees to have a PAN card. Bank account is very important क्योंकि पुराना सिस्टम ऑफ चेक्स इज स्टॉप्ड इन PF. अभी जो भी फंड्स एम्प्लॉइज को वापस मिलेंगे, बी इट एडवांस और बी इट देयर PF क्लेम और पेंशन, वो उनको उनके बैंक अकाउंट्स में ही मिलेंगे. एंड फोन नंबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी जो भी क्लेम हो रहा है इट इज ऑल ऑनलाइन एंड द एम्प्लॉइज हैव टू क्लेम इट ऑन देयर ओन, और उनका लॉगिन के लिए OTP उन्हीं के फोन में आएगा. सो वर्किंग फोन नंबर विच इज कॉन्स्टेंट. जियो आया तो एयरटेल छोड़ दिए, एयरटेल आया तो वोडाफोन छोड़ दिए, तो नंबर्स अगर चेंज होते रहेंगे तो योर एम्प्लॉइज कैन गेट इनटू ट्रबल. अगेन नॉमिनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग. अगर नॉमिनीज नहीं चढ़ाया हुआ है तो वो पैसा निकालने में बहुत दिक्कत होता है. सो नॉमिनीज विथ देयर आधार कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ PF. नाउ जो ब्रेकअप जाते हैं, दैट इज पेंशन में 8.33%. 10 years of contributory members ensure lifelong pension. So pension fund में अगर 10 साल किसी ने contribution कर दिया है तो लाइफ लॉन्ग the employee और employee के बाद उसके widow या widower वो पेंशन उनको लाइफ लॉन्ग मिलेगा. स्पेशल ओकेजन में PF also gives advance, that is either a loan or an advance, whatever you call it, वो possible है. And the interest currently is I think 8.5%.
4 और 8.5%, and that is interest free, tax free. एक फीचर जो पीएफ में लोग ज्यादातर नहीं जानते हैं, अपने आप कैलकुलेशन में अपने सुने होंगे 12% और 12%, बट एम्प्लॉयर एक्चुअली पे करता है 13%. So that extra 1%, 0.5% goes to ELI, EDLI, and another 0.5% goes to admin charges. So ये EDLI में जो जा रहे हैं, that is basically a term life insurance for all the employees who are covered under EPFO. So 2.5 लाख से 6 लाख तक का उनको बेनिफिट मिलता है डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशन एंड देयर सर्विस पीरियड. सो अगर पीएफ और ईएसआई में कवर्ड है अपने एम्प्लॉइज, they and their families covered medically, their savings are taken care of, their pensions are taken care of, and in case of unfortunate untimely death, even their life is covered. Again, the audit points, proper calculation of PF आपको चेक करना है कि आपने सैलरी शीट में क्या दिखा रखा है आपके क्लाइंट्स ने. सेकेंडली, डिपॉजिट ऑन टाइम हुआ है कि नहीं, इंटरेस्ट एंड डैमेजेस. Again, arrear and supplementary, as I explained, supplementary if not filed within the subsequent 15. किसी का डॉक्यूमेंट नहीं आया 2 महीने बाद आप उसका पेमेंट कर रहे हैं तो वो डिसअलाउ होगा, बट ओनली द एम्प्लॉई शेयर. एम्प्लॉयर का पार्ट, कंपनी का पार्ट नहीं होगा, एम्प्लॉई का पार्ट होगा. दिस अप्लाई ओनली दिस. एंड ईसीआर एंड एक्नॉलेजमेंट में आपको वो सारा मिल जाएगा कि वो किस दिन पेमेंट किया है. इफ यू वांट टू क्रॉस चेक इट, जो एक्नॉलेजमेंट एंड पेमेंट स्लिप निकलता है वहां से, उसमें डेट एंड टाइम दोनों मिलता है आपको. एंड ईसीआर में आपको मिल जाएगा कि वो कितना पेमेंट उसके अकाउंट में हुआ है. नाउ दिस इज, आई थिंक यू नो इट, अभी तो एमसीए में आप जब भी कुछ करते हैं तो पीएफ एंड ईएसआई का रजिस्ट्रेशन साथ में ही मिलता है, बट ओनली वंस यू क्रॉस दैट 20 का थ्रेशोल्ड इट बिकम्स कंपल्सरी. मिनिमम वेजेस एक्ट बेसिकली इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में ही है. अथॉरिटी इसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है. तो यहाँ आपको चेक करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, इफ दे आर वर्किंग फॉर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेमिसेस, से समवन इज वर्किंग फॉर रेलवेज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल होगा. अगर लाइक नॉर्मल बिजनेसमैन who is operating within the state और फैक्ट्री कहीं पे भी है, तो उस ज्योग्राफी का जो मिनिमम वेजेस है, that is always declared by the state government. In West Bengal, हर 6 महीने में they announce a new list of minimum wages based on the industry and criteria. अलग-अलग इंडस्ट्री में अलग-अलग हैं, then zone wise अलग-अलग है. So every 6 months you should revise that minimum wages is paid or not paid. Then applicable on all commercial organization. बाकी जितने भी labor laws हैं, they apply to organizations with 10 or more employees. The PF applies to 20 or more, but this is one act which applies even to one employee. अगर कोई आप एक भी employee रखते हैं, तो minimum wages act के अंदर आप cover है. Wages is as per skill level, और इसका एक जो रिटर्न लगता है इन फॉर्म 3 इन बंगाल. एप्लीकेबल ग्रेचुइटी, हाँ, ग्रेचुइटी इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. मान लीजिए कोई बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ एम्प्लॉइज 10 के नीचे हैं, तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, बट एनी ऑर्गेनाइजेशन अबव 10 वहाँ ग्रेचुइटी अवेलेबल है. तो बहुत जगह आपने पहले देखे हैं कि आपने घर पे ड्राइवर काम कर रहे हैं या कुछ है, वो आगे ग्रेचुइटी मांगने. एज ए इंडिविजुअल एम्प्लॉयर आपने 10 लोगों को नहीं एम्प्लॉय किया है, लेबर कोड भी जाता है तो उसका ग्रेचुइटी के लिए एंटाइटल नहीं है वो. बट एनी ऑर्गेनाइजेशन विद 10 और मोर एम्प्लॉइज, या फिर इतिहास में कभी भी 10 पार किया है, तो ग्रेचुइटी एप्लीकेबल है. एंड एज आई टोल्ड यू, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल. एक बार 10 क्रॉस कर गए, देन केम डाउन, then still it is applicable. Now again, यहाँ पे जो wages in case of gratuity means all emoluments payable in cash including DA,
बट नॉट बोनस, HRA एंड OT। आप बेसिकली समझ सकते हैं कि जो PF में अपने पेमेंट करते हैं ना, बेसिक जिसको क्लासिफाई किया है, दैट इज उस अमाउंट पे होगा। आज किसी की सैलरी 20,000 है बट बेसिक 10,000 है, तो ग्रेचुइटी 10,000 पे कैलकुलेट होगा, एंड इट इज ओनली पेड इन द एट द टाइम ऑफ एग्जिट। एंड 5 years ऑफ कंटिन्यूड सर्विस चाहिए। ब्रेक सर्विस है तो वो नहीं माना जाता है। एंड इन 5 years, व्हेन आई से 5 years, it is basically 5th year में you have to have minimum of 240 days of working, so that is considered as a full 5 years। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें इवन इफ समवन कंप्लीट 6 months, it is considered to be completion of 5 years। so आप प्रैक्टिकली बोल सकते हैं 4.5 साल के बाद gratuity is payable, and the maximum gratuity that can be paid as per Gratuity Act currently is 20 lakhs। किसी का उससे ज्यादा होता है तो ऊपर का अमाउंट एक्स ग्रेशिया में बुक होगा, ग्रेचुइटी में नहीं। प्रोविजन इन बैलेंस शीट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू दैट, कि जो आपका अक्रूड लाइबिलिटीज है ऑफ ग्रेचुइटी शुड बी प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट। एंड ये कैलकुलेशन वंस आई शेयर द स्लाइड्स विथ यू, मे बी यू कैन टेक इट फ्रॉम दैट। ये अपने 15 दिन का होता है बट नॉर्मली 30 डेज से डिवाइड नहीं होगा, वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता है। सैलरी डिवाइडेड बाय 26 into 15 days of the last drawn salary। In case of death and disability, no minimum eligibility is there। Now, some good best practices, as I told you: register your employees on time, issue TIC, that is temporary I card or e-Pehchan card। Empanelment of ESIC में आप e-Pehchan कार्ड देने के बाद एम्प्लॉय को उनके ब्रांच ऑफिस में जाके अपना डिस्पेंसरी एम्पैनलमेंट करवाना होता है, डॉक्टर एम्पैनलमेंट करवाना होता है। दैट इज अ प्रोसेस व्हिच दे शुड बी डूइंग। मेंटेन सैलरी एंड अटेंडेंस रजिस्टर्स प्रॉपर्ली एंड पे वाया बैंक। फाइल एक्सीडेंट रिपोर्ट्स प्रॉम्प्टली। ये जो अपने सेशन शुरू हुआ उसके पहले कैजुअल डिस्कशन में चल रहा था कि बेनिफिट्स मिलने में दिक्कत होती है। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, ESIC में अगर एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल नहीं हुआ बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलने में बहुत दिक्कत होती है। नाउ अगेन वेरीफाई आधार, जैसे मैंने बताया, डेट ऑफ बर्थ नॉट ईयर ऑफ बर्थ। फाइल ECR विद इन 15th। हैव प्रॉपर ब्रेकअप्स ऑफ सैलरी। पे PF चालान बिफोर 15th। KYC को टाइमली सीडिंग कीजिए एंड रिटायर योर एम्प्लॉयज एट द एज ऑफ 58। डू नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 58, रिटायर करके। अदरवाइज PF में क्या बहुत जगह केसेस देखने को मिला है कि उनका पेंशन की जगह प्रोविडेंट फंड में जमा होना चाहिए रुपया, बट पेंशन में जमा हुआ तो उनको पेमेंट उठाने में दिक्कत हो रही है। सो टाइमली रिटायरमेंट इन ESIC इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कमिंग टू व्हाट एवरीवन वाज लुकिंग फॉर टुडे, the scheme that the government has given, it is for only the new employees who have joined your organization after 30th of September 2020। that is 1 अक्टूबर के बाद जो ज्वाइन किए हैं सिर्फ उनका मिलेगा। आज आपके 50 एम्प्लॉय हैं, जो 5 नए आए हैं तो सिर्फ 5 लोगों का बेनिफिट आपको मिलेगा, पूरे 50 का नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज ओनली ओपन टिल 30th of June। 2 साल का स्कीम है, बेनिफिट 2 साल का है, दैट इज 24 मंथ का। बट आप ये समझ लो 1 अक्टूबर से लेके 30 जून ज्वाइन करेंगे, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलेगा। और जो अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद दीज गाइज विल बी बेनिफिटिंग फॉर 24 मंथ्स। तो मान लीजिए कोई 30 जून को रजिस्टर किया तो 30 जून प्लस 24 मंथ्स, दैट इज हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट टाइम UN होना चाहिए, दैट इज जो भी आपके यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उनका पहले कहीं पे भी PF नंबर नहीं होना चाहिए, और उनका जो सैलरी है जिसपे PF दिया जाएगा दैट शुड बी बिलो 15,000। 15,000 पे नहीं मिलेगा, 14,999 पे मिलेगा। एंड देयर आर मेनी अदर फाइन पॉइंट्स, जैसे कि जिन लोगों का जॉब गया है बिटवीन मार्च एंड सितंबर उनको मिलेगा, बट उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने ठीक से उनका एग्जिट दिखाया हो
तो मान लीजिए किसी की जॉब गई है इन February तो उसको नहीं मिलेगा, बट किसी की जॉब गई है इन March तो उसको मिलेगा. So there are many fine points in that. There are criterias of less than 50 employees company, more than 50 employees company, more than 1000 employees company. So there are many fine points in question answers. I think we will be covering most of it. And last but not the least, this is very close to my heart, child labor below 18. Please encourage all your clients not to employ anyone below 18. क्योंकि न तो आप उसका compliance कर पाएंगे and otherwise also it is not humanly correct. So thank you. This was my presentation. Now we can open up for, I think we are good to go with the question Yes, answers. Yes, Aditya ji. Sir, if you can kindly stop sharing the screen, I think then we can. Yeah, I'm trying to do that. वो इतने सारे पॉपअप्स आ रहे हैं ना बार बार. हाँ सर, मैं अपने एंड से भी कर सकता हूँ, आप अगर बोलेंगे तो मैं कर देता हाँ हूँ. कर दीजिए. ठीक है सर. Sir, so all of them are on mute. So Prakash bhaiya, whosoever has a question, they can raise their hand and I can unmute them from here. Yes, that's the best way. And Prakash bhaiya, with your due permission, can I take some undue advantage of being on the panel and asking the first question? Sure. It's Sir, अभी जैसे a lot of people are on freelance basis with IT companies and they are working from home. They are not working from the office premise, and the office also does not provide any facilities to them. For example, net connection or laptop or anything. Are they generally एक agreement sign करवा लेते कई सारी IT companies जो कि सब contractor वाला agreement होता है. Contractor, subcontractor. So, sir, इस केस में ये applicable है or is it disputable or is it black and white, sir? No, it is not disputable, but इसका treatment क्या आपने किए हैं books में, that is what we have to see. See, if it is a contractor और आपके बीच में contractor and subcontractor का agreement है, and you have followed the proper guidelines for TDS deduction. Correct. And beyond अगर 20 लाख हो जाता तो फिर GST वगैरह का, basically you are signing a commercial contract. So as a commercial contract अगर आपका वो compliances है, मतलब ग्रे एरिया में नहीं रख सकते. अगर एम्प्लॉय है तो आपको लेबर कंप्लायंसेस करने हैं. इफ इट इज अ प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन, तो आज मान लीजिए हम लोग भी अपने क्लाइंट्स को जो बिल करते हैं, दैट इज अ प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन, प्रोफेशनली बिल करते हैं. एब्सोल्युटली सर, उसी हिसाब से टीडीएस वगैरह काटा हुआ है सर. हाँ, तो वही सेम अगर वो उन्होंने ट्रीटमेंट कर रखा है अपने बुक्स में, तो बेसिकली वो तो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गया ना. करेक्ट. तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन वो क्लासिफाई नहीं हुआ एज एन एम्प्लॉय. करेक्ट. बट वो पूरा करना चाहिए. बहुत लोग क्या करते हैं, वो 1% टीडीएस काट के छोड़ देते हैं. बट नॉर्मल एक जो ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए अपने अगर किसी को 20 लाख रुपए का बिल काट दिए या फिर व्हाटएवर इट इज, तो वो जीएसटी का इम्प्लीकेशन, टीडीएस का इम्प्लीकेशन, बिल आपको, आप जब ऑडिट करेंगे किसी को पेमेंट किया तो उसका बिल है कि नहीं, अग्रीमेंट एंड बिल होना चाहिए. वो सब अगर अपने प्रोसीजर फॉलो किए तो फिर यहाँ पर ये सही. देन यू आर क्लासिफाइंग इट एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. तो फिर वो कंसल्टिंग बिल हो गया आपका. Then it is not an employer-employee relation. आदित्य जी, कभी क्या होता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपने जब हायर करते हैं तो उस समय एक बात होती है कि यू आर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर दैट कॉन्ट्रैक्टर. तो यदि वो यदि पेमेंट नहीं करता है या वो डिफॉल्ट होता है तो एसएससी एंड डिफॉल्ट मेरे को माना जाएगा. वो क्या चीज? अभी नहीं, इसमें सबसे पहले तो आप अगर किसी को एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं, हाँ, तो आप एक ही साथ दोनों डेफिनेशंस एक ही ट्रांजैक्शन में एक पार्टी को नहीं दे सकते. ही इज कॉन्ट्रैक्टर आल्सो एंड ही इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आल्सो. क्योंकि अगर वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है तो बाय डिफॉल्ट आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गए. तो ये चीज हो गया. यहाँ पे एक टर्म है प्राइमरी एम्प्लॉयर. यहाँ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वाला टर्मिनोलॉजी, नॉमेनक्लेचर नहीं यूज होता है. प्राइमरी एम्प्लॉयर का हुआ तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर आपके पीएफ और ईएसआईसी में रजिस्टर्ड है, so there is a Madras High Court order of 2015 which says if a contractor is registered under PF and ESIC, the contractor should be treated as the primary employer, and it is still debatable and contestable
बट एक इंसुलेशन एंड एक सेफ्टी लेवल वहां पे है कि अगर आपका एम्प्लॉय सॉरी आपका कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है तो वहां पे वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं होगा, प्राइमरी एम्प्लॉयर होगा, रजिस्टर्ड प्राइमरी एम्प्लॉयर। और यदि प्राइमरी एम्प्लॉयर जो है पीएफ रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्या लायबिलिटी हमारी रहेगी? यस, बाय डिफॉल्ट वो आप ही का है। ओके। एंड इन अदर केस ऑल्सो अगर वो रजिस्टर्ड है भी तो भी पीएफ ईएसआई में उनको ये इंस्ट्रक्शन है कोर्ट का कि आप उन प्राइमरी एम्प्लॉयर से पहले रिकवर करोगे, बट फिर भी पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर लाइबिलिटीज जो है वो इंश्योर करने की लाइबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर ही है। तो आपके कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए रजिस्टर्ड भी है तो उनसे आप जब बिल लेते हैं तो साथ में उनका चालान लीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए, ensure that all compliances and labor laws are followed. Otherwise, your principal employer can get into trouble. मैंने इस केस में चालान के साथ एक अंडरटेकिंग या एक डिक्लेरेशन लेना ऑलवेज सही रहेगा प्रत्येक मंथ में। नहीं, डिक्लेरेशन नहीं, मान लीजिए वो आपको बिल दिया, बिल के साथ में वो उसके कितने लेबर लगे या कितने लोग लगे वो आपको एक वेट शीट देगा, वेट शीट के साथ उन लोगों का चालान उसने भरा है कि नहीं चालान का कॉपी देगा आपको। बिल में आपका जितना काम किया है वो तो हो सकता है 10 लोगों का काम कर रहा हो, बट आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं आपके बिल का जो कंपोनेंट है आपकी लाइबिलिटी वहीं तक सीमित है। ओके ओके ओके। तो उसका आपने अगर सपोर्टिंग ले लिया कि मेरा चालान है, मैंने देख लिया कि पेमेंट हुआ है, प्रूफ ऑफ पेमेंट्स आपने अक्यूमुलेट कर लिया, सो दैट इज बेसिकली यू हैव कंप्लीटेड द साइकिल। अदिति जी एक क्वेश्चन आया है विद्या खन्ना जी का, हाउ मच इंटरेस्ट विल एम्प्लॉय गेट? आई थिंक यू कवर्ड 8.5% और 8.4। अभी है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इन पीएफ दे आर गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 8.4 और 8.5। अभी मैं आई एम नॉट वेरी अपडेट ऑन दैट। पर्सनली तो मुझे कुछ मिलता नहीं है। No, for this year ministry already confirmed 8.5% for this year। हाँ, ये कंफर्म कर चुकी है इस बार, कल परसों ही आया था। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक जो है मिनिमम वेजेस के विषय में आप बता रहे थे, तो बताया कि यदि when one employee is there then we have to maintain the minimum wages act। हाँ, तो इसमें क्या प्रत्येक कंपनी को मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर रिटर्न देना जरूरी है क्या प्रत्येक साल? देखिए रिटर्न नहीं भी आप अगर दिए हैं, अगर आपने किसी को मिनिमम वेजेस के नीचे पेमेंट किए हैं तो दैट इज अ वायलेशन। और ये जो लेबर लॉज हैं बेसिकली दिस इज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। यस यस। सो दिस इज ओनली वन एक्ट व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन इवन वन एम्प्लॉय। और बाकी के कंप्लायंसेस में छूट मिले हुए हैं कि भाई मिनिमम एक 10 एम्प्लॉय नहीं हुआ, छोटे कंपनी है तो उनको छूट मिला हुआ है, बिकॉज दोज आर वेलफेयर स्कीम। बट आप अगर किसी को मिनिमम वेजेस के नीचे देते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ exploitation. So to prevent any kind of exploitation, ये एक एम्प्लॉय अगर भी है आपका तो आप किसी को भी, बोलने का मतलब किसी को भी मिनिमम वेजेस जो एक विद इन बिलो द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर जो है आप वो नहीं पे कर सकते। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में तो जनरली इंस्पेक्शंस नहीं होते हैं, बाय लॉ आपको करना है, बाय लॉ करना है। अब बहुत जगह प्रैक्टिकल नहीं है तो भी इफ यू हैव पेड you are comparatively you are safe। ओके। एक अमित शर्मा जी का क्वेश्चन है, एज फार एज पीएफ एक्ट इज कंसर्न, डू कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर आर आल्सो टेकन एज हेड काउंट फॉर पीएफ ऑब्लिगेशन? यस, एनी एम्प्लॉय, आज मान लीजिए आपके सिर्फ 5 एम्प्लॉय हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर में 25 हैं, तो आपके यहाँ पे टोटल हेड काउंट 30 माने जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। आदित्य जी इस पे एक बात बताता हूँ, मेरे यहाँ 19 एम्प्लॉय हैं। हाँ, तो एक मेरे पंडित जी आते हैं पूजा कराने के लिए आधे घंटे के लिए, हाँ, तो क्या वो हेड काउंट होंगे? बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो होंगे। एक बैलेंस शीट में दिखाते तो होंगे। आप अपने पॉकेट से देते हैं तो नहीं होगा। अब फेसबुक लाइव पे हैं प्रकाश जी। नहीं, इट्स नॉट द, इट्स अ जनरल क्वेश्चन सर। ये एक जनरल क्वेश्चन है। और देखिए बहुत सारा ऐसा जो छोटा खर्चा होता है ना, हाँ, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि इसको बुक करना और उसको मेंटेन करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है।
तो ये जो 150, 2000, 100, 500 का जो खर्चा है, इट इज बेटर कि डायरेक्टर्स अपने पॉकेट से दे दे और उसको ऑफिशियली अपने बुक्स में एज ऑफिशियल एक्सपेंसेस नहीं बुक करके योर ओन पर्सनल एक्सपेंसेस आप उसको बुक कीजिए पर्सनल अकाउंट्स में। सेव्स यू अ लॉट ऑफ हेडेक। तो 2000 रुपए में आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ना आपके बैलेंस शीट में। देखिए, जब तक बाद बाकी लोगों का क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तब तक इस समय का मैं एडवांटेज लेता हूँ। हाँ हाँ एकदम। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, हाँ तो वो वर्डिक्ट और जो जनरल लॉ है पीएफ के लिए जो कैलकुलेशन है, दोनों में क्या आप सजेस्ट करोगे, किसको मेंटेन करना चाहिए? जो वर्डिक्ट आया था ऑन 28 फरवरी 2019 का बात कर रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, तो इसमें बहुत कंसेप्शन एक ये है कि ये उस दिन आया तो ये कब से लागू है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लॉ जहां थी वही है। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट दैट बेसिक का डेफिनेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से ये थी, इंडस्ट्री के हिसाब से वाई थी। सो सुप्रीम कोर्ट और भी ऐसे 5-7 केसों को मर्ज करके दे हैव गिवन अ कंसोलिडेटेड वर्डिक्ट कि बेसिक का मतलब क्या है। सो बेसिकली लॉ वही है, इंटरप्रिटेशन पे क्लैरिफिकेशन आया है, तो उसका एप्लीकेबिलिटी जब से एक्ट है तब से ही है। अब जो इसमें जो अपने सोशल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह ये जो नया जो वेज कोड आया है, इसमें थिंग्स हैव बीन रीडिफाइंड एंड ऑल दिस पीएफ ईएसआई वगैरह का डेफिनेशन को काफी हद तक इन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है। इसके अभी तक रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं, एक्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका है, सो अगेन इट विल चेंज मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम अप्रैल। सो ये जो वर्डिक्ट आया था इसमें इट हैज नॉट कि ये एप्लीकेबल कब से है, ये एप्लीकेबल तभी से है जब से एक्ट बना था। नहीं, तो आदित्य जी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है एक्ट को सुपरसीड कर रहा है फिर? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, एक्ट में जो लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट का इंटरप्रिटेशन एक था, इंडस्ट्री का इंटरप्रिटेशन दूसरा था। सो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन को फ्रीज किया, एक्ट में कहीं भी चेंजेस नहीं किया उन्होंने। दिस लाइन मीन्स व्हाट, उसका क्लैरिफिकेशन किया है। So they have only settled the dispute of interpretation, dispute of definition. They have not changed or superseded anything on the act. जैसे जैसे मेरी जानकारी में था कि पीएफ का जो सैलरी कैलकुलेशन था, हाँ, उसके हिसाब से और उसका कैलकुलेशन और ईएसआई का कैलकुलेशन दोनों के बीच में बहुत सा गैप था। ईएसआई के कैलकुलेशन में बहुत सा चीज ऐड हो जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सैलरी, बट पीएफ के कैलकुलेशन में बहुत सा चीज छूट जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपने जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद वो सारी चीजें जब जो है पीएफ में ऐड हो जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर जो एक भार पड़ रहा है उसके कंट्रीब्यूशन पे। देखिए, पीएफ एक्ट में आपके सेक्शन 2 में दिया हुआ है कि बेसिक क्या है, और उसमें दिया हुआ था, पुराने एक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो नया कोड आया उसका नहीं, उसमें दिया हुआ था does not include HRA and similar allowances. Yes. तो ये जो ग्रे एरिया था इसको उन्होंने क्लेरिफाई किया है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, ईएसआई में सारे अलाउंसेस whichever is fixed on a monthly basis वो आपके ग्रॉस सैलरी में कैलकुलेट होता है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ पीएफ लोग क्या करते थे, उसका एक ब्रेकअप होता है कि भाई ये आपका बेसिक सैलरी हो गया, ये आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया, ये आपका कन्वेंस हो गया, ये फोन अलाउंस हो गया, ये आपका एचआरए हो गया। अलग अलग अलाउंसेस होते थे, और आई हैव सीन मतलब कितने तरह के अलाउंसेस मैंने अपने लाइफ में देखा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ बेसिक पे देना है, बाकी अलाउंसेस पे नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया उसने बोला है कि आपके जितने भी अलाउंसेस हैं, ऑल दैट अलाउंसेस आर बेसिक। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आपको बाकी सारे अलाउंसेस पे देने हैं। उन्होंने बेसिक के डेफिनेशन को क्लेरिफाई किया है कि सारे अलाउंसेस एक्सेप्ट फॉर एचआरए व्हिच इज एक्सप्लिसिटली रिटन इन द एक्ट
आर पार्ट ऑफ बेसिक। सो बाय डिफॉल्ट सारे जो अपने LTA और कन्वेंस अलाउंसेस, फोन अलाउंसेस जो भी दे रहे थे, अब उसका डेफिनेशन जो पहले अलाउंसेस था नॉट बेसिक में, वो अलाउंसेस अब सारे बेसिक में सब्ज्यूम हो गए एज पर द न्यू क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके ओके। तो अभी भी आप दे रहे हैं बेसिक में ही है, बट बेसिक का डेफिनेशन ब्रॉडन हो गया है। सो ये चक्कर पड़ा है। सो आफ्टर दैट लॉट ऑफ पीपल हैव रीस्ट्रक्चर्ड देयर सैलरीज और सब कुछ किए हैं काफी कुछ। सो लेट्स सी, होपफुली फ्रॉम 1st of April अगेन काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एंड दीज चेंजेस आर बैलेंसिंग आउट द इफेक्ट ऑफ दिस जजमेंट। जो नया अपने वेज कोड आया है, इसमें काफी कुछ बैलेंस हो जा रहा है। ओके ओके। तो नया कोड के विषय में बहुत ज्यादा हम लोग तो अवेयर नहीं है, तो क्या बोलते हैं ये इंडस्ट्री में अभी हम लोग बहुत ज्यादा इसको कर भी नहीं रहे, क्योंकि कोड में क्या है ना, एक्ट पास हो गया है, बट अभी तक रूल्स आए नहीं है। और आप लोग जानते हैं, अब जैसे GST एक्ट और GST रूल्स में कितना जान निकलता है। तो जब तक रूल्स नहीं आता उस पर अभी हम लोगों को कोई चर्चा ज्यादा, मैं अपना कमेंट दूं या कोई कंसल्टिंग दूं, नॉट वेरी वाइज। क्या होने वाला है डायरेक्शन एक समझ में आ जाता है एक्ट को देख के, बट फाइन प्रिंट रूल्स देख के बता पाएंगे। एक जो है अमित शर्मा जी का एक क्वेरी है, इफ एन एम्प्लॉय इज ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months and has been confirmed on the payroll after 6 months, he will the gratuity act applicable from the date of joining or from the date of confirmation date? फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि आपके PF ESI भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही लग रहा है। ये ग्रेचुइटी एक्ट बोल लीजिए, चाहे PF एक्ट, ESI एक्ट में कहीं पे भी प्रोविजनरी एम्प्लॉइज का कोई मेंशन या डेफिनेशन नहीं है। इफ यू आर एंगेजिंग एनीवन एट अ कॉम्पनसेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इज एन एम्प्लॉय, सिंपल एज दैट। प्रोविजनरी का कुछ नहीं है, टेम्पररी वाला और उसका है। इफ अ पर्सन कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर 5 साल कंप्लीट किया है तो इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये उद्यान गर्ग जी हैं, वो शायद बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। उद्यान जी, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है तो मेरे ख्याल से वी कैन 1-on-1 भी जा सकते हैं। एग्री। उद्यान जी, उद्यान जी अनम्यूट है क्या? अनम्यूट हैं आप? अनम्यूट किए तो थे अभी उद्यान जी कहीं शायद। हाँ, उद्यान जी को अनम्यूट तो किए थे शायद। एनीवे जब तक उनका क्वेश्चन हाँ, आता है। उद्यान गर्ग जी आप बोलिए, आप अनम्यूट है सर, आपको कुछ बोलिए। नहीं आ रहा आवाज। उद्यान गर्ग जी आप टाइप कर दीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रकाश, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ 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 बजरंग सर, भाई, तुम इसको नोट कर ले और कल सारा डिस्कशन कर ले। एक बार में मेरे को बोलना, मैं इंट्री मार के जो भी करना है कर के बता ठीक है राहुल, राहुल अनम्यूट कर लो। ठीक है राहुल। चौखानी जी, हाँ। एक क्वेश्चन मेरा भी है कि सपोज कर एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 3 एम्प्लॉई है, और वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है काम का और काम करता है, तो उसके लिए कंपलसरी है PF और ये रजिस्ट्रेशन लेना? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो तो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ। हाँ, कमर्शियल ट्रांजैक्शन जैसा सेफ और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो उसके साथ। नहीं, आप बात समझिए इसमें, जैसे एक हो गया फैब्रिकेशन वाला बात हो गया, हाँ, और एक हो गया आपका कॉन्ट्रैक्चुअल। हाँ, दोनों का अपने GST में भी क्लासिफिकेशन अलग है। आज कॉन्ट्रैक्चुअल कोई अपने सर्विस देते हैं तो उसमें 18% GST लग रहा है, और कहीं पे अगर फैब्रिकेशन का बिल हो रहा है तो वहाँ 5% लग रहा है। हाँ, हाँ, तो बेसिकली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपने खर्चा बुक किया है, हाँ, हाँ, तो किस क्लासिफिकेशन पे किया उस पर डिपेंड करता है। अगर वो फैब्रिकेशन वाला चीज है, हाँ, हाँ, तब फिर वो PF एक्ट के अंदर आपका वो हेड काउंट में काउंट नहीं होता है। इस नहीं अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो
ट्रांसपोर्ट बिजनेस का टोटली अलग चीज हो गया। ट्रांसपोर्ट तो हाँ। नॉन एक्सक्लूसिव टाइप से हो गया ना, वो हाँ फैब्रिकेशन वाले ही कैटेगरी में आ जाता है। हाँ हाँ। तो उस पे क्या PF ESI कंपलसरी है, क्योंकि उसके यहाँ तो 3 ही स्टाफ है, और वो कंपनी है जो जो कंपनी में जिस कंपनी का वो काम कर रहा है, वो कंपनी बोले PFI और ESI का नंबर लो, तो इज इट कंपलसरी? देखिए, नहीं, अब इसमें दो चीज हो गए। देखिए, हाँ एक हो गया कि जो आपका ट्रांसपोर्टर है उसको एज एन एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि 3 एम्प्लॉई है, उसको देने की जरूरत नहीं है, नहीं PFSI है, की हाँ कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, दैट इज फाइन। हाँ अब मैं अगर उसका कस्टमर हूं और मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर उसको लेना है हाँ। तो वो वॉलंटरीली ले सकता है। नहीं वही मैं बोला ना, अभी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज जो है, क्योंकि हाँ आप ये बात समझिएगा, उस कंपनी के लिए वो हेडकाउंट में काउंट हो जा रहा है अगर एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है तो। हाँ 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 अब आप जब ट्रांसपोर्टेशन में बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी ट्रांसपोर्टर को माल दिए कलकत्ता से मेरे को अहमदाबाद माल पहुंचा दो, वो एक हाँ अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ आपने अभी आपके कहीं कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, वहां आपने 5 डंपर्स हायर किए, हम्म, वो एक अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर हाँ आपने फ्लीट हायर किया तो हाँ इन केस ऑफ फ्लीट हायरिंग, अगर मैं हायर कर रहा हूँ आपको एज अ कॉन्ट्रैक्टर, तो मेरे हेडकाउंट में वो 5 लोग जुड़ रहे हैं। छूट रहे हैं, आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ मेरे ऊपर वो लाइबिलिटी आ रहा है। तो मैंने जैसे बताया था ना, प्राइमरी हाँ हाँ एम्प्लॉयर हाँ हाँ इंसुलेशन लेने के लिए, हाँ 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 तो बिगर कंपनीज आर ओनली गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू पीपल हु आर रजिस्टर्ड टू मेक श्योर कि वो कंप्लायंस का ब्लो बैक उनके पास नहीं है। नहीं आए, हाँ, तो आप जो बता रहे थे वो ये वाले केस होनी चाहिए। ये वाला केस हो जाएगा। बट इंडिविजुअली अगर वो इंडिपेंडेंट कहीं काम कर रहा है तो फिर तो उसको जरूरत नहीं है। एज एन एस्टेब्लिशमेंट जरूरत नहीं है, बट वो उसका अपना बिजनेस तो रिक्वायरमेंट है वो कि तो उसको उसको PF और ESI का लेना, तो 3 पे तो मिलता नहीं है PF और ESI का नंबर। वॉलेंटरीली सब मिलता है। गवर्नमेंट वैसा पैसा लेने के केसेस लिए मेरे तैयार पास है। भेज दीजिएगा, मैं सब करवा दूंगा। ऐसा अच्छा, कोई इसका जो PF और ESI का जो अपने रिटर्न जमा करते हैं एवरी मंथ, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्सेल में बनाया हुआ कि सो दैट कि अपने आप कैलकुलेशन निकल जाए और वो जमा कर दें हम लोग? नहीं, अपने आप कैलकुलेशन निकल जाए और वैसा नहीं है। इसका फॉर्मेट तो वहीं से डाउनलोड होता है, जो फॉर्मेट अपलोड होता है, हाँ हाँ और कैलकुलेशन में आपको मैनुअली थोड़ा तो देखना ही पड़ता है, हाँ हाँ क्योंकि 2-3 चीज है। जैसे अब किसी का, देखिए इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशन है। मान लीजिए किसी का आपके शीट में निकल गया, तो उसमें से एक बंदे का नंबर नहीं जनरेट हुआ हुआ, तो आपको उस शीट में से माइनस करके फिर चालान चढ़ाना है। फिर मिनिमम 500 रुपये एडमिन चार्जेस आपका लगना ही है, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने अगर 2 पार्ट में चालान जमा किया है तो वो 2 बार आपका लगेगा मिनिमम चार्जेस। हम्म, फिर ESI में जैसे अगर कोई छोड़ गया है या किसी का 0 कंट्रीब्यूशन है तो उसका रीजन लिखना पड़ता है। तो वो थोड़ा मैनुअल इंटरवेंशन तो है, कैलकुलेशन तो शीट में हो जाता है। हो जाता है। चालान प्रिपरेशन का जो शीट है वो उसमें थोड़ा मैनुअल इंटरवेंशन रहना ही है। एंड इन अ वे इट इज गुड, क्योंकि वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय का इंडिविजुअल केस होता है ना, हम्म। तो वो भी एक बात चीज। और, आप एक बात और बताएं कि है ना, पैन नंबर जो है अपडेट कर देने के लिए, तो सपोज कीजिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पैन नंबर अगर अपडेट नहीं था, तो अभी भी कर सकते हो तो? हाँ हाँ हाँ, अभी भी कर सकते हैं। बस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये ध्यान रखिए, अपडेशन या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सारे KYC में आपके इंफॉर्मेशन सेम होने चाहिए। बहुत जगह आपने देखा होगा पैन नंबर में अलग डेट ऑफ बर्थ या स्पेलिंग मिस्टेक है, आधार में कुछ और है, तो वो मिसमैच के चलते फिर वो डिस्क्वालीफाई होगा। हाँ, वो पहले मैच कर लेते। तो ये सारी चीजें, ये एक्सरसाइज करने से क्या है, नॉट ओनली फॉर PF, आज के जमाने में अगर किसी का KYC स्ट्रीमलाइंड है तो हर तरह के चीज में उसको बहुत सुविधा है ना, जनरल हाँ, लाइफ बहुत जीने में बहुत सुविधा है। यस यस तो यस। क्या PF के चक्कर में ये जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं, विद द एम्प्लॉयर्स हेल्प इनका डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो जा रहा है, तो ठीक हो जा रहा है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो भी हैं वो मिलने में बहुत सुविधा हो जाता है उनको। बहुत सुविधा हो जाएगी। So more than compliances, this should be done as a social service also. यस राइट। आदित्य जी एक चीज किए थे, एरियर सर्विस, एरियर सैलरी का। हाँ, उसमें एरियर सैलरी एक होता है डिक्लेयर्ड और एक होता है पेड। तो अपनी जो लायबिलिटी कैलकुलेट होती है ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट। देखिए डेट ऑफ पेमेंट और डिक्लेरेशन, और इसमें एक चीज आप भूल गए, दैट इज द डेट ऑफ ड्यू। हाँ, ड्यू इज तेरा। तो देखिए मैंने इसमें 2 बात बोले थे, एक बोला था सप्लीमेंट्री, एक बोला था मैंने अरियर।
हम्म, तो अरियर आपने जिस दिन डिक्लेयर किया आपने तभी पेमेंट किया है। हम्म, मान लीजिए विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल था, बट आपने मंथ ऑफ अगस्त में डिक्लेयर किया, तो आपने मंथ ऑफ अगस्त में पेमेंट किया है। ऐसा तो होता नहीं है कि अरियर हमने आज डिक्लेयर कर दिया और 6 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं, राइट? ये 6 महीना तो नहीं, लेकिन महीने 2 महीने तो चलते हैं। हाँ ठीक है। सो बेसिकली पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ये ग्रे एरिया है, क्योंकि डिक्लेरेशन आप कहीं ऑफिशियल तो कर नहीं रहे हैं, ओके 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 ओके। तो उसका कोई ड्यू डेट एज सच नहीं है, क्योंकि मेन अमाउंट तो आपने पेमेंट कर चुका है, उसका कंप्लायंस भी आप कर चुके हैं। तो वहां पे वो ड्यू डेट फेलियर वाला क्लॉज आपका लागू नहीं होता है, स्पेशली अरियर। अच्छा आदित्य लेकिन जी, वही एक इसमें लेकिन यही चीज है, मान लीजिए सप्लीमेंट्री का आपके कुछ एम्प्लॉइज में से एक आधा का डॉक्यूमेंट नहीं आया, वो 2 महीने बाद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ, केवाईसी कंप्लीट हुआ, और आप जून अप्रैल और मई का सैलरी आप जून में उसको कंप्लायंस कर रहे हैं, उस जगह वो सप्लीमेंट्री होगा और वो डिले पेमेंट माना जाएगा और वहां वो डिसअलाउ होगा। ओके। आदित्य जी, आपका तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है इसमें, और सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है पीएफ और ईएसआई में कि जो 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ तो एम्प्लॉय और वर्कर दोनों को तो हम लोग एक ही मानते हैं इसमें। हाँ तो एम्प्लॉय तो क्या है कि थोड़ा सा पे पैकेज थोड़ा ठीक होता है, तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेता है कि ठीक है भाई 12% दे देंगे। वर्कर होते हैं वो थोड़ा फ्रीक्वेंट रहते हैं, फ्रीक्वेंट माइंड के भी रहते हैं, और लॉन्जिविटी भी नहीं रहती उनकी। हाँ कि 1 महीना यहाँ है, 2 महीना दूसरी जगह है, 4 महीना दूसरी जगह है। उस केस में वो किसी भी तरह से किसी कन्विंस होने के पोजीशन में नहीं होते हैं कि मैं 12% अपना कटवाऊं, जबकि उनको कॉमर्शियली मॉनेटरी बेनिफिट हम लोग समझाते भी हैं कि भाई 12% तुम दे रहे हो, एम्प्लॉयर को भी 12% देना पड़ता है, तो तुम्हारा 12% एक्स्ट्रा मिल रहा है, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। तो क्या आप लोग कैसे हैंडल करते हैं इसको? हैंडल करने का कुछ नहीं है, ये रेगुलेटरी पार्ट एंड प्रेफरेंस पार्ट, इसका तो कोई कहीं मेल है ही नहीं। ये तो नदी के 2 किनारे हैं। एम्प्लॉय तो हर समय जो कल्चरली जो चीज चाहते हैं, दिस इज वेयर द मैनेजमेंट स्किल कम्स इन। आपको समझाना है या आपको उसको इम्पोज करना है, बिकॉज एज एन एम्प्लॉयर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब ये वही बात हो गई अपने, अगर सीए टर्म्स में या टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि मुझे टीडीएस कटवाने में तकलीफ हो रही है, आप उसको क्या हैंडल करोगे? भाई सरकार का नियम है, जो करना है वो करना है। सर टीडीएस पोसाता है तो कटवाने मत में, करो। सर जैसे ट्रांसपोर्टर वाले आते हैं ना टीडीएस कटवाने के लिए, तो गवर्नमेंट भी ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्टेशन पे से टीडीएस हटा देती है। यहाँ अपने केस में क्या होता है कि अब वर्कर को, इंडस्ट्री को भी चलाना है, वर्कर को भी रखना है, और उनको कटवाना भी नहीं है, तो अल्टीमेट क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ वेजेज जो बढ़ जाता है 25% पूरा का पूरा। वो है, लेकिन आप अगर फ्रॉम द ब्रॉडर सोसाइटियल प्रोस्पेक्टिव में आप देखें तो पीएफईएसआई इज बोथ अ वेलफेयर स्कीम फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द वर्कर्स। एग्री। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर लोगों को इसीलिए दिया गया है, और ये चॉइस नहीं दिया गया है कि नहीं कटवाएंगे। अदरवाइज ये कंप्लायंस भी, आप अपनी सैलरी तो जिसको जो सेव करना है वो सरकारी स्कीम में खुद डिपॉजिट करें, बट ये समझाना और इम्पोज करना और इस चीज को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि आप समझिए ये 15,000 के नीचे वालों के ऊपर कंपलसरी है, 15,000 पे रिस्ट्रिक्शन है पीएफ का। सो दैट इज द लोअर सेक्शन, जिसको द वीकर सेक्शन, जिसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। नाउ देयर विल ऑलवेज बी, आप उसको अगर 500 रुपए हाथ में एक्स्ट्रा मिलता है घर में खर्चा करने को, तो उसके लिए बहुत ईजी है, बट वो जो बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है, ये अंडरस्टैंडिंग उतना लोअर लेवल पे अवेयरनेस नहीं है, बोल के दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कस्टोडियनशिप इज गिवन टू द एम्प्लॉयर कि आप इसको इम्पोज कीजिए। और ये अपने यहाँ पे अभी भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट वही आज जीएसटी का जैसे बात करते हैं, जब सब फॉलो करने लगे तो सबको करना ही है, नहीं देंगे इज नॉट एन ऑप्शन। तो कल को अगर ये सारे एम्प्लॉयर्स इसको फॉलो करते हैं, तो अगर एम्प्लॉयमेंट में आना है तो यही स्ट्रक्चर है। So we are gradually moving into the new normal, जहाँ पे ये सारी चीजें आर यूनिवर्सल। अभी बहुत सेलेक्टिव है बोल के प्रॉब्लम है।
ये जितने स्कीम्स वगैरह निकाल रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये यही चीज है कि जितना यूनिवर्सल होगा, जितना वाइड स्प्रेड रहेगा, तो कल्चरली वो एक्सेप्टेंस आना होगा। इसका और कोई उपाय नहीं है। आइदर यू हैव टू इम्पोज इट और यू हैव टू कन्विंस इट, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट। और भी पार्टिसिपेंट लोगों से रिक्वेस्ट है, दे कम फॉरवर्ड एंड रेज द क्वेश्चन एंड शेयर योर व्यूज आल्सो, because we are in the practical field, so everyone normally face this type of प्रकाश जी, problem. मैं एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। Yes sir. 1 मिनट में आता हूँ मैं। Sure. बजरंग जी, आप अपने आप को म्यूट करें, अनम्यूट करें। देखिए, मेरे को लगता है कि सबका कोटा पूरा हुआ है, खाली मेरा ही कोटा लगता है नहीं, कम कोई है दिक्कत थोड़ा। नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक। नहीं, हो सकता है जब हम बात करते हैं तो ये सभी के लिए है, ये जनरल क्वेश्चन है। अच्छा, एक आदित्य जी, एक क्वेश्चन आता है कि जो वर्कर होते हैं, जो पीस मील बेसिस पे करते हैं, पीस बेसिस पे प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में है, जो वीकली बेसिस पे पेमेंट लेते हैं और फिर उसके बाद आते हैं या नहीं आते हैं, फिर नेक्स्ट इस तरह का चलता है, कंट्रोल करते हैं। पीएफईएसआई कैसे इसका कंट्रोल आप मिनिमम वेजेस के हिसाब से कंप्लायंस कीजिए और बाकी का जो अमाउंट है वो आपका वेरिएबल पे में जाएगा। वेरिएबल मतलब उसका तो वीकली पेमेंट है, बट वो कंप्लायंस तो वीकली नहीं होगा, कंप्लायंस मंथली ही होगा। तो मान लीजिए किसी का कोई भी आपका अर्निंग्स है, तो वो अर्निंग्स में जो वेजेस के हिसाब से जो आपका अर्निंग्स है कैलकुलेशन कर लीजिए, बिकॉज दैट इज मोर ऑफ अ अपॉर्चुनिटी बेस्ड रिवॉर्ड अर्निंग दैट यू आर गिविंग टू द एम्प्लॉय। उस केस में क्या होगा आपका कि आप वेजेस के ऊपर कंप्लायंस कर सकते हैं पीएफ का। ईएसआई का अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो पूरे पे पेमेंट कीजिए, एंड दैट इज हाउ बेसिकली आप कंप्लायंस करेंगे। क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज में पीस रेट का वेजेस या कॉम्पनसेशन मिनिमम वेजेस जैसे अटेंडेंस बेस्ड है, कुछ इंडस्ट्रीज में वो फिक्स है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, बट एज अ थंब रूल आप ये मान के चल सकते हैं कि जब आप पीस रेट करवा रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अटेंडेंस के ऊपर। तो जो भी वेजेस है, एक वेजेस का आप स्लैब बनाइए और उसके ऊपर बाकी का जो है दैट इज द रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव, वैसे आप उसका कंप्लायंस कीजिए। ये अगेन बहुत स्पेसिफिक और बहुत केस टू केस है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इंडिविजुअल केस है तो आप इंडिविजुअल केस मेरे से डिस्कस कर सकते हैं ऑफलाइन। वो केस टू केस मुझे उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर अदर एंगल्स टू इट एज वेल। उसमें काफी सारे एंगल्स हैं कि कैसे काम हो रहा है, क्योंकि हर जगह का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे आप कपड़े में बोलते हैं या आप लेदर में बोलते हैं, इस तरह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पीस बेसिस ही होता है, बट अगेन वहाँ पे भी बहुत सारे डायनेमिक्स अलग हैं। कुछ पीस बेसिस पे डायरेक्टली काम करते हैं, जैसे कपड़े में पर पीस का आपका फैक्ट्री वाले के लिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं, कहीं कहीं वो एक ग्रुप टाइप में काम करते हैं। तो बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें, तो इंडिविजुअल केस पे ही ये डिसाइड करना पड़ेगा, इसका कोई थंब रूल नहीं है। सर एक थोड़ा सा निर्भर लेबर रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्टली पीएफ ईएसआई से नहीं है सर, पूछ सकते हैं क्या? सर कई सारे लोग विदाउट नोटिस जैसे छोड़ के चले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में सब लिखा रहता है, तो उसको कैसे इन्फोर्स किया जाए सर? इज देयर एनी अदर? उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, नोटिस के वैल्यू काट सकते भले ही अगर है तो, बट यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू स्टे बैक एंड वर्क फॉर यू, बिकॉज इसमें आप एक चीज समझिएगा, ऑन इंटरप्रिटेशन आप किसी को जबरदस्ती अगर काम करवाते हैं तो दैट बॉर्डर लाइन स्लेवरी। इसीलिए आप अगर उसमें कोई भी तरह का चीज करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग है तो उसके हिसाब से पेनलाइज कर सकते हैं, बट आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। और सर अगर एम्प्लॉई है मान लीजिए फुल टाइम, तो कई सारी कंपनियां क्या करती है कि अगर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व करते तो आपका नोटिस पीरियड का पे आपसे डिडक्ट करवाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड, फुल एंड फाइनल में आप उसका पैसा काट सकते हैं। वही मैंने आपको बोला ना, पेनलाइज कर सकते हैं, बट आई कांट फोर्स देम टू स्टे कि सर्व देयर एंटायर नोटिस पीरियड वगैरह, दिस कैन नॉट बी फोर्स्ड।
आप मतलब कमर्शियली आप उसको ये कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, करेक्ट। बट फिजिकली आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते आपके लिए काम करने को। तो फिजिकली सर करके भी क्या फायदा, क्योंकि वो पता चलेगा लॉन्ग टर्म में वो हानि करेगा। वो बात नहीं है, लेकिन ये अभी अपने रेगुलेशंस का अगर बात करते हैं तो आप तो वो किसी को भी correct जबरदस्ती काम करवाना इज अगेन इलीगल ऑन अदर ग्राउंड्स मोर देन लेबर लॉ। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। कमर्शियली बहुत सारे टाई अप करते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज मेनली हैंडल्ड नॉट बाय रेगुलेशन, बट इट इज मोर हैंडल्ड बाय द एचआर प्रैक्टिसेस एंड हाउ इनोवेटिव यू कैन बी विथ योर कॉम्पनसेशन मेथोडोलॉजी। जैसे बहुत जन रिटेंशन बोनस है या आप काफी दिन रहते हैं तो कुछ रिवॉर्ड के तरह से चीजें जरूरी नहीं है कि अपनी पीनलाइज करके अचीव करें। बहुत सारी अच्छी चीजें हम लोग रिवॉर्ड करके भी अचीव कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। Which is more handled by the HR practices than regulatory. अरे ये गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी है आत्मनिर्भर योजना जो दी है न्यू एम्प्लॉय को लाने के लिए, हाँ। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको रखने के लिए कोई स्कीम है क्या? न्यू नहीं, एग्जिस्टिंग वालों के लिए कोई एम्प्लॉय नहीं है। ये अपने अगस्त में खत्म हो गया। सरकार तो लॉकडाउन पीरियड में दिया ही था एग्जिस्टिंग वालों का। उसमें काफी लोगों को मिला है। मेरे ही काफी क्लाइंट्स में इट्स अ वेरी हैंडसम अमाउंट दैट दे हैव एक्चुअली सेव्ड। और न्यू एम्प्लॉयमेंट मतलब ये तो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए है। तो बेसिकली इसमें दो इनका ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में आया क्लियर, माय पर्सनल ओपिनियन, कि आप एम्प्लॉयमेंट रिसाइकल कर रहे हैं। मान लीजिए इसको अगर अच्छे से समझें तो कोई दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, आपके कंपनी में आ रहा है, तो बेसिकली आप उसको खींच रहे हो, तो आपके यहाँ ऑलरेडी वैल्यू एडिशन है, तो यू नीड नॉट एनी रिवॉर्ड फॉर दैट, या उसके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और कोई फर्स्ट टाइम अगर आपके यहाँ ज्वाइन कर रहा है तो यू आर एंटाइटल फॉर अ रिवॉर्ड, नंबर 1। और या फिर मार्च टू सितंबर अगर किसी का नौकरी गया है, आप उसको री एम्प्लॉय कर रहे हो, उसमें भी रिवॉर्ड है, वो भी इसमें एलिजिबल है। एंड हाई वैल्यू एम्प्लॉइज इसलिए एलिजिबल नहीं है कि अगेन दे आर एज अ वैल्यू एडिशन टू योर कंपनी। तो वैसे एम्प्लॉइज आपको ज्वाइन करते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड। तो ये चीज है। तो बेसिकली इनका कॉन्टोर वही है कि आप अच्छे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नए सेक्टर में ज्वाइन करवाएं, नए एम्प्लॉइज को ज्वाइन करवाएं, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को ज्वाइन करवाएं, और जिनका जॉब गया है उनको अगर आप हायर करते हो तो यू हैव अ रिवॉर्ड। इसमें ये चीज है। इट मीन्स ये हुआ कि जिनका पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर है, हाँ, उनको उनका जॉब लेफ्ट होना चाहिए मार्च टू अगस्त सितंबर, फ्रॉम 1 मार्च टू 30 सितंबर के बीच में अगर उनका जॉब गया है। अदरवाइज न्यू रजिस्ट्रेशन नीड टू, यस, कि उनका पहले कभी भी पीएफ का नंबर नहीं रहा हो, दैट इज यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये एक बार जनरेट होने के बाद क्या इसको बंद भी कर सकते हैं क्या, क्लोज भी किया जाता है क्या? क्या चीज जनरेट होने के बाद? अकाउंट नंबर? यूएएन नंबर, नहीं, यूएएन नंबर क्लोज नहीं होता आपका। वन टाइम लाइक ए पेन कार्ड, पेन नंबर। नहीं, आधार के जैसे ही आपका लिंक्ड है ना, वो आधार से लिंक्ड है। ओके ओके ओके। और जब आपने पीएफ जमा करवाते हैं तो एक हो गया यूएएन नंबर, वो हो गया आपके जो एम्प्लॉय का अपना नंबर, और एक होता है उसका पीएफ नंबर जो कि उसको मिलता है आपके कंपनी से। तो वो एक पीएफ नंबर से दूसरे पीएफ नंबर का जो बैलेंस ट्रांसफर करवाता है वो अपने यूएएन नंबर से लिंक करके ही करवाता है। तो एक तरह से समझ लीजिए वो बैंक अकाउंट नंबर हो गया। ओके ओके। अच्छा, ये जो ईएसआई हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल और नॉर्मल हॉस्पिटल, बोलिए। रखते हैं क्या? क्योंकि अभी सारी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो सारे जो है हॉस्पिटल की बनांजा ऑफर दे रहे हैं, उसके बावजूद पीएफ क्यों कराएं लोग, ईएसआई क्यों कराएं? बोनांजा ऑफर के बाद ईएसआई क्यों करवाए वाली जो बात है, एक तो देखिए जो भी ऑफर दिया है आपका आयुष्मान भारत एंड ऑल, वो दैट इज लिमिटेड टू 5 लाख, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आप कवर्ड है, आपके डिपेंडेंट नहीं। एक परिवार में 5 लाख दिया है, एक व्यक्ति को 5 लाख नहीं दिया है। और ईएसआई का बेनिफिट ये है कि आप जो काम कर रहा है वो भी कवर्ड है, और उसके जो डिपेंडेंट है वो भी कवर्ड है, और इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। तो
एक तरह का आप ये चीज समझिए कि अपने जो वर्किंग क्लास है इन द इकोनॉमी, दे आर द कंट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमी, एंड ये आयुष्मान भारत में दिस इज बेसिकली अ वेलफेयर हैंडआउट एक तरह से, कि जो कमजोर तबका है उनको हम मदद कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूटरी एंड गेटिंग हेल्प आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो कंट्रीब्यूटर को इन्होंने ज्यादा बेनिफिट दे रखा है कि आपके पेरेंट्स हैं, आप हैं। आज ये बेसिकली इसका फंडा ये है, और ये आयुष्मान भारत तो इधर शुरू हुआ, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, एंड आज के डेट में ईएसआई हॉस्पिटल्स आर एक्चुअली वेरी गुड। आज हम लोग जब हैंडल करते हैं अपने क्लाइंट्स के यहाँ पे, अपने जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ मैनेजमेंट में है, 6000 एम्प्लॉइज प्लस हम जो मैनेज कर रहे हैं, तो कितने ही तो हमने बाईपास करवा लिया, बाईपास सर्जरी ईएसआई से ही, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। डायलिसिस का तो नंबर ही नहीं है, गिनती नहीं है कितने लोगों का डायलिसिस हो रहा है। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे मान लीजिए मदर फादर दोनों डायबिटिक पेशेंट हैं, कोई 8-10 हजार का सैलरी है उसका, बट महीने में 15 से 17 हजार का इंसुलिन ईएसआई काउंटर से मिल रहा है उनको। ब्रेन स्ट्रोक वगैरह का काम हो गया है, लिवर साइरोसिस का हो गया है, और इलाज अच्छा होता है, और इलाज अच्छा होके लोग घर पहुंचते हैं। बट ये सरकारी काम है, तो फॉर्मेलिटीज जानना बहुत जरूरी है। जो मैंने बोला ना कि पहले से डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आज क्या होता है कि एम्प्लॉय ने बाकी डिटेल्स नहीं दिया, सिर्फ अपना डिटेल्स दे के ईएसआई कार्ड बनवा लिया। अब उसके घर पे किसी को हुआ, बट उसका नाम चढ़ाया हुआ ही नहीं है, और उसको ईएसआई हॉस्पिटल लेके जाएगा तो थोड़ी उसको बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट का काम और गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स आर देयर टू एंश्योर द बेनिफिट गोज टू द बेनिफिशियरी। आज मैं और आप चले जाएंगे मुंह उठा के भी मैं कुछ हूँ, फ्रॉड तो इंडिया में कम नहीं है। तो इसीलिए अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सही है, सही हाथों में काम हो रहा है, आपका गाइडेंस आपका सही है, तो मतलब अब मैं बता नहीं सकता कि अनगिनत केस है मेरे जो ईएसआई से बेनिफिशियरी है। गुड। डिलीवरी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, 70, 80, 90 साल के माँ बाप हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं। और आप एक बात समझिए ना, किसी को 15-17 हजार 20 हजार का जो घर में जहाँ इनकम है, ब्रेड अर्नर, सिंगल ब्रेड अर्नर, 5 लोगों का मेंबर है, 20 हजार का इनकम में अगर कोई एक बड़ा बीमारी आ गया, 2-4 लाख रुपए टूट गया, तो वो घर खत्म है कर्जे में। तो कितना बड़ा प्रोटेक्शन है। और एम्प्लॉयर्स जो ये नहीं समझते हैं, एम्प्लॉयर्स को ये समझना होगा कि आज अगर एम्प्लॉय आपका प्रोटेक्टेड है, पुराने एम्प्लॉइज हैं, वो अल्टीमेटली देखेगा तो आप ही की तरफ। ईएसआईसी में अगर वो और उसका परिवार कवर्ड है, तो वो बर्डन आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और टोटल में 4% लग रहा है। मान लीजिए एम्प्लॉय का भी आपने ही दे दिया, तो भी 4% सैलरी के ऊपर, किसी के 2 लाख का सैलरी 8,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया तो कोई बहुत ज्यादा पिंच नहीं करता। बट एम्प्लॉय एंड आप खुद कितने प्रोटेक्टेड हैं वो आप समझिए। कोई एक्सीडेंट हो गया, यू आर प्रोटेक्टेड, सारा क्लेम ईएसआई से मिलेगा उसको, सारा इलाज ईएसआईसी से मिलेगा। ये तो अपने नीचे काम करने वाले की जिम्मेदारी नहीं, ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बोल रहे हैं, सही में क्लैप की बात है। अदरवाइज हम लोग तो यही मानते हैं कि ईएसआई का पैसा जो है सिर्फ जो है गवर्नमेंट अकाउंट में ही जाता है, उसका यूज जो है गवर्नमेंट वहां जाके जगह भी नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बात ये मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एज अ कमर्शियली एंड प्रोफेशनली नहीं भी आए, अगर किसी को कभी ऐसा जरूरत पड़ता है तो यू कैन ऑलवेज रेफर देम फॉर हेल्प टू मी। पैसा लगा है और सरकार देती भी है बेनिफिट, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। एक गरीब को तकलीफ हो रहा है और एम्प्लॉयर डिस्करेज हो रहा है, तो देयर आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प एंड इंटरव्यू। सर मैं तो ऐसे एक केस मेरा देखा हुआ है, जिसका ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट ईएसआई हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा था, तो ईएसआई डिपार्टमेंट ने उसको बेलव्यू में भर्ती करके उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो स्पेशलाइज्ड केस है, सुपर स्पेशलिटी जिनका एक्टिवेट हो जाता है 1 साल के बाद, तो जो ईएसआई हॉस्पिटल में नहीं होगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होगा। और वो सारा खर्चा डिपार्टमेंट बियर करता है, 1 रुपया नहीं लगता है एकदम। बट डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। हाँ सर, एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई अगर मैं सीनियर सिटीजन को ज्वाइन करवाता हूँ अपने यहाँ, तो मतलब इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं है ना सच की पीएफ ईएसआई में एनरोलमेंट का? पीएफ में है, ईएसआई में नहीं है। पीएफ में कितना है सर? पीएफ में 58 है। तो अगर बियॉन्ड 58 कोई मैं किसी को ज्वाइन करवाता हूँ, और अगर मेरे पास मान लीजिए ऑलरेडी 100 एम्प्लॉइज हैं, तो वो फिर पीएफ में ही इज नॉट एलिजिबल?
देखिए पीएफ में दो चीज होते हैं, एक हो गया इंक्लूडेड एंड एक हो गया एक्सक्लूडेड। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया के चलते कुछ लोग एक्सक्लूडेड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन का बात बोले तो दैट कैन बी एक्सक्लूडेड। अगर आप इंक्लूड करते भी हैं उनको तो उनका क्या है, पीएफ में आपके 4 पार्ट हैं। पेंशन फंड अलग है, प्रोविडेंट फंड अलग है, ईडीएलआई एंड एडमिन। तो जिनका ये है आपका सीनियर सिटीजन, उनका पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन बंद होके वो पूरा पैसा प्रोविडेंट फंड में जाता है। ओके, दैट इज वन। अगर एक्सक्लूड है तो वो अगर रिटायर होने के बाद उनका अकाउंट बंद करवा चुके हैं, पैसा उठा लिया, रिटायरमेंट चालू हो गया उनका, then that can be classified as an excluded employee. That is one. At the time of joining, मान लीजिए आप मेरे को कोई बी स्कूल से या कहीं अच्छे इंजीनियरिंग से कहीं से उठाए, मेरी इनिशियल सैलरी ही ज्यादा है। At the time of joining, an employer and employee jointly mutually can opt out of PF अगर वो उसका बेसिक 15,000 के ऊपर है। एक फॉर्म 11 होता है, वो साइन करके यू कैन बी एक्सक्लूडेड। तो 15,000 बेसिक के ऊपर आप एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आपके मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि 100 के 100 एम्प्लॉय आपके पीएफ में रहेंगे। बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया कुछ एम्प्लॉय बाहर भी रह सकते हैं। एंड सेम विथ ईएसआईसी, 21 के ऊपर वाले जो है उनका नहीं देना है। मान लीजिए 100 एम्प्लॉय है, उसमें से 20 आदमी आपके 21,000 के ऊपर के हैं, अब सिर्फ 80 लोगों का ही पैसा जमा करेंगे, और वो भी फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं, अर्नड अमाउंट पे। ठीक है सर, थैंक यू। Any other question? Yes, one question from again from Amit Sharma ji. If the employee covered under ESI Act get permanently disabled on accident during the office hour, will the current employee get ESI benefit for lifetime? Yes, एक उसमें कंट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भी आता है। एंड नॉट ओनली दैट, अगर वो परमानेंट डिसेबिलिटी है तो उसको सबसे पहले तो डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेंगे कि लैक ऑफ अर्निंग का जो कॉम्पनसेशन है वो मिलेगा। एंड बाद बाकी का भी जो जनरल है, ये चीज एक और आप समझ लीजिए, एम्प्लॉय जो छोड़ के चले गए या ये सही से डिसेबिलिटी के चलते आपका डिसएंगेज हो गए हैं, एम्प्लॉय के पास खुद के पास एक ऑप्शन है, वो 120 या 125 रुपए का कंट्रीब्यूशन जमा करके वो अपना कवरेज चालू रख सकते हैं। ओके, उसमें एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है, एम्प्लॉय देमसेल्व्स हैज एन ऑप्शन। और एक चीज है ईएसआई में, अभी बता दूं, ईएसआई में अभी ये है कि अगर कोई जॉब किसी का चला गया है एंड आई थिंक इट इज 90 डेज तक अगर उसको दूसरा जॉब नहीं मिला है, so they can claim unemployment benefit from ESIC also. तो 3 महीने का उनको 3 महीने का उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी मिलता है। क्या क्या वो अमाउंट क्या रहता है, क्या कैलकुलेशन रहता है सर? वो डायरेक्ट उसमें जाके इंडिविजुअल केसेस में ही देखना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन जिस अमाउंट पे हुआ है उसका लास्ट ड्रॉन, देखिए सारे स्कीम्स में इफ्स एंड बट्स बहुत हैं, बट बेनिफिट है, और सही तरीके से अगर समझ के उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाए तो बेनिफिट मिलता भी है। मेरे जानने में कई लोगों का कई एम्प्लॉइज को मिला है, जो ये लॉकडाउन में काफी लोगों का जॉब गया। आई सजेस्टेड इट एंड उनका प्रोसेस करके दिया है, टीम ने प्रोसेस किया है, तो काफी लोगों को बेनिफिट, मतलब ये जितनी आज के डेट में बोल सकता हूँ कि जितनी भी बेनिफिट्स एंड स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम, पीएफईएसआई का बोलो या ये सब्सिडी स्कीम्स वगैरह हैं, ये एक्चुअल में मिलता है और बहुत आसानी से मिलता है और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिलता है आपको। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको। आदित्य, प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो न्यू एम्प्लॉय के लिए तो 25% का बोनस है डायरेक्टली। हाँ एकदम है। यदि मैं 10,000 देता हूँ तो उसका 12,500 का सैलरी हो गया। हाँ आप बोल सकते हैं, 10,000 देते तो 12,500 नहीं हुआ, 12,000 12,400 नहीं, ठीक है। अब उसका 12,400 नहीं हुआ, 10,000 आप दे रहे थे तो वो जो 12% आपके बच रहा है उसको तो पहले भी मिल रहा था ना। आप 10,000 किसी का बेसिक था तो मान लीजिए 11,200 उसके खाते में ऑलरेडी जा ही रहा था।
नहीं, बेसिकली देखिए मैंने अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर तो सिर्फ जो है विदाउट पीएफ की बात करता है तो 10,000 रुपए का 10 रुपए देंगे भैया, हाँ मेरा हाथ में। देना देना नहीं है। बट आज के डेट में यदि 10,000 वो देता है और हम्म, पीएफ का रजिस्ट्रेशन करवा लेता है बंदा, हाँ तो बिना कुछ दिए 2 साल तक जो है 12,500 रुपया तक 12,400 तक दे सकता है उसको। कि हाँ, भाई 12,400 24,000 तक मतलब 2400 रुपया एम्प्लॉय के अकाउंट में जा रहा है। हाँ 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 हाँ, बट 1% का कॉस्ट जो वो एम्प्लॉयमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट का, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का है, ठीक 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 ठीक। वो रहेगा। ये बजरंग, if some question is there then raise the question, or I think the 1.5 hour only crossed, so if it is भजन जी आपका म्यूट है वो। हाँ 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 हाँ, मेरे को लगता है कि लोगों की क्वेरी खत्म हो चुकी है। बाकी मेरा नंबर शेयर कर लीजिएगा। श्योर हाँ श्योर सर, आप चैट में भी अपना नंबर डाल दीजिए या बोल दीजिए। अपना नाम मैं और डाल नंबर देता हूँ। दीजिए। हाँ, कि कुछ एक पार्टिसिपेंट ने आपका नंबर मांगा भी है। कि मैंने अपना नंबर डाल दिया है। तो 9831121463 हाँ 9831121463। कुछ एक सर पार्टिसिपेंट ने जो है स्लाइड्स मांगी है आपकी। हाँ, वो मैं शेयर कर लूंगा प्रकाश जी के साथ। हाँ, प्रकाश जी को मैं दे दीजिए। इसको पीडीएफ बनाकर मैं शेयर कर दूंगा। श्योर श्योर, तो दैट विल बी इजी। आप अपने व्हाट्सएप वगैरह में भी सर्कुलेट कर सकते हैं। यस यस यस, थोड़ा अजीब हो जाता है। तो ये है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो ऑफलाइन, मेरा नंबर आपको मिल गया है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, सुबह 10 से रात को 10 बजे तक। मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कुछ भी चीज करते हैं लेबर कंप्लायंसेस में, तो मेरा नंबर है, आप मेरे से एक बार पूछ कर लीजिए। रादर देन इट इज ऑलवेज बेटर टू बी श्योर देन टू अज्यूम। श्योर श्योर श्योर, अज्यूम नहीं करके एक बार कोई चीज को श्योर कर लीजिए। और लेबर लॉ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। रेलेवेंट एक्ट्स को पढ़िए, अगर उतना मेहनत नहीं करना है तो एक कॉल कर लीजिए, बट अज्यूम मत कीजिए। बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको यही प्रपोज कर सकता हूँ मैं। It's a nice deliberation and the good initiative taken by our government for the Atmanirbhar Bharat scheme. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो विद्या बताया जा रहा है, और साथ में जो है हमको कंप्लायंट करने के लिए जो ये बूस्टअप स्कीम है, रियली मेरे को लगता है ये इन फ्यूचर में बहुत काम आएगी। टू ऑल दी ऑडियंस एक चीज मैं और बता दूं, अभी एक एक्सटेंशन मिला हुआ है 15 तारीख तक। बहुत लोगों का आपका शायद सुना होगा आपकी 30 सितंबर का जो चालान है ये सही का, वो नहीं भर पा रहे थे क्योंकि ये आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड जो है वो क्लोज होने के 40 या 42 डेज के बाद आप चालान नहीं बना सकते हैं। ये स्पेसिफिकली मान लीजिए सितंबर तक का चालान आप नवंबर 10 तारीख के बाद नहीं बना सकते हैं। ये अलग बात है कि आप अप्रैल का चालान सितंबर तक बना सकते हैं। तो इसका भी एक्सटेंशन आया हुआ है एज ए स्पेशल केस। 15 तारीख तक वो चालान जो ब्लॉक हुए थे, आप नहीं बना सकते हैं, वो बन रहे हैं। एंड अदरवाइज भी इस तरह का अगर कोई डिफिकल्टीज फेस करता है कभी भी, सो देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट। मतलब डिसिप्लिन करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर हैं, बट उसका रास्ता भी है उसको रिजॉल्व करने का। इस तरह का अगर कोई फंस जाता है कि भाई चालान नहीं बना पाए थे, अब हम बना नहीं पा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग हमें मेरा हेल्प हमेशा ले सकते हैं उस चीज के लिए। बट अभी फिलहाल के लिए आप खुद कर सकते हैं क्योंकि 15 तारीख तक वो खुला हुआ है। तो ये एक और रिलीफ आया है अभी। So let's see. Now over to you, Prakash. Yes, आदित्य जी, it's a nice deliberation and practically हम लोग बहुत कुछ समझ पाए, because we are in dilemma for the labor laws and their compliance is part. Now it's a part for the vote of thanks as our culture. So I request to Mr. Rahul Dungta, please give the vote of thanks to our speaker and our esteemed participant. Thank you, Prakash ji.
Thank you, Aditya ji, for your time and for the wonderful deliberation that you have done today, sharing your rich knowledge on labor laws with us. PFESI is actually a very murky sort of, murky is not the right way, but a gray area as far as we CAs are concerned, because every state has got different laws and these laws are also not very clearly laid out. So this way it has helped us to understand quite a few things. And especially in your slide, you have pointed out where we should, as chartered accountants, where, what are the things that we should take note of while conducting our audit is also much appreciated by us, sir. Thank you very much for that, particular highlighting those particular aspects. So, sir, thank you very much for your time, and we hope to see you again in future, as and when new labor laws and new labor code is implemented. I'm sure you will be, happy to take out some time from your busy schedule and deliberate more on that. Thank you very much, sir. And on behalf of the association, I would also like to thank each and every participants, those who are there right now and those who were here earlier. Thank you very much for participating and asking your queries. We really appreciate that. Thanks a lot. Thank you, everyone. Thank you. everyone. Thank you, you. Prakash ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year to you. Prakash ji, thanks Thank you. everyone. Thank you, Kanchanji. Happy New Year. Thank you. Thank you. And anyone, anytime can call me. मेरा number है. Sure, कोई sure. भी don't think it is a murky area. As long as you have my number. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you.